make a request to all to start your videos, please. It will be easy for us to interact, and you can keep yourself unmute, but keep your videos on. See, this is a platform we can meet together, we can share, but with videos on, it will be easy for us to, हम लोगों को एक दूसरे को देख के बात करने में ठीक लगेगा. This जितने is भी a humble request, please. जितने भी लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए एंड जिनको थोड़ी सी झिझक हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, सो नो प्रॉब्लम. ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके कारण सब लोगों को हिचकिचाहट और झिझक होती ही है. जस्ट अ सेकंड, वन ऑफ द पर्सन हु वांटेड टू जॉइन इज ओह, कॉलिंग मी. see, वीडियो ऑन होने से अनुजा वीडियो नहीं, ये वीडियो ऑन होने से इट लुक्स सो ब्यूटीफुल टू सी पूर्णिमा इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. शी इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, एंड मयंक से मेरी बात बहुत बार हुई है, बट नाइस टू सी यू. हाय मैत्री, वेरी लॉन्ग टाइम. हाउ आर यू? हाउ आर यू मैत्री? I'm fine, ma'am. How are you? प्लेजर प्लेजर. सो अनुजा, आपके हिसाब से किससे हम शुरू करना चाहेंगे? कौन से स्पीकर हमारे आज पहले अपना व्यू रखें? सिंस हमने रिकॉर्डिंग नहीं शुरू की थी, मैं वापस से इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी. वेलकम एवरीवन मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे सेलिब्रेशन. और आप सबको पता चल गया कि क्यों 28 में इसको इस दिन को चुना गया है टू कमेमोरेट दिस डे. बिकॉज 5 days का एक साइकिल होता है और 28 days का वो मंथली साइकिल होता है. सो अब मैं आप लोगों को इस आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आई थिंक हम बड़ों के बदले में सबसे पहले छोटों से शुरू करें तो कैसा लगेगा? हाँ, श्योर. या सो डेफिनेटली, आई थिंक. I would like to start with the youngest, Maitri, जिन्होंने अपने आप this is to be really appreciated, okay, कि उन्होंने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने खुद ढूंढा ऑप्शन, उनको खुद को लगा कि देयर शुड बी, आई नीड एन ऑप्शन, एंड she will tell us ki what all she did, how she did, and she is the one who educated her mom. So सोचिए वो कहाँ से हो रहा है ना, हमने ऐसे करके कान पकड़ा. Well done, Maitri, we are very proud of you. So please do एंड share. एक्चुअली अनुजा, मैत्री को इसलिए भी स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज शी इज द वन हु कैन टीच अस दैट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, एज डजंट मैटर, है ना? Of course, of course. Maitri, please do share and start this conversation कि कैसे एक टीनेजर भी बिना किसी बड़े के काइंड ऑफ इंटरवेंशन के बता सकती है या शुरू, लाइक यू नो दैट सेल्फ, हम बोलते हैं सेल्फ एडवोकेट बनो. तो वो आपने किया, कैसे किया, क्यों किया, वो सब बताइए प्लीज. वो स्टोरी हम सुनना चाहते हैं. Thank you so much, ma'am. Thank you for the introduction. मैत्री, थोड़ा साउंड आपका पास में बेटा, थोड़ा Okay. और तेज बोलना. आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए. So it all started जब the pads, they were causing so much irritation to me, and I always I search for solutions, and then of course social media comes very handy. So it was lockdown moreover, so everybody had phones in their hands. So randomly I had videos in my feed suggested for menstrual cups. I was scared about talking things like this to my mom, but as I got to know the number of people making videos on this, that boosted my confidence so much. And I thought it, as she is also a female, so I shouldn't be afraid of talking this to her. So one fine day, after having so much of research on types and models of cups, I gathered courage and I spoke to her about it. And she gave me the courage too, and I started. What was the age you started using cup, Maitri? I was 13 that time.
See, wow, lovely. 13 years age, how you started using cup. और यहाँ बड़े लोग भी डरते हैं. Yeah. That's a I misconception. just Yeah. the times when I would feel कि this is what डरावना, I would just think कि इतने लोग कर रहे हैं तो अगर मैं भी करूंगी तो क्या ही हो जाएगा. Like we do have doctors, अगर देख लेंगे क्या हो जाता है. So I had that carefree attitude which I went with. That's That helped incredible. all That's the way. incredible, Maitri, because the first question जो कोई पूछता है, you must have also heard that question कि it's a very मतलब I have to say that it's now no questions are silly questions. So we have Megha also जिनको हम next request करेंगे. वो भी एक बहुत ही पावरफुल कंटेंडर हैं, एक उनका एक्सपीरियंस है. तो अगर वो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आया, तो वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. वी शुड नॉट लाफ अबाउट, लाइक आई एम सीरियस. मुझे अभी 3 दिन पहले किसी मॉम ने पूछा एंड आई वाज लाइक किधर लॉस, किधर गुम जाएगा, मतलब सोचो जरा. तो वो एक ऐसी चीज है जो लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण दैट विजुअलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट. नहीं, लेकिन उससे मतलब अनुजा, लेकिन उससे डर नहीं लगा तुमको कि ऐसे कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, बट स्टार्ट यूजिंग इट? वेल आई नेवर हैड टू यूज इट, सो नहीं, इसका मैत्री का पूछ रही हूँ मैं कि डर नहीं लगा मैत्री, जो अनुजा पूछ रही है. मैंने बहुत गायनेकोलॉजिस्ट के भी वीडियोस देखे थे, तो अगर डॉक्टर ही बता रहे हैं कि कितना भी एज हो यूज कर सकते हो, तो आई डिडंट लेट दैट डाउट गो इनटू माय ब्रेन. दैट्स एन एक्सेलेंट पॉइंट. दैट्स एन एक्सेलेंट पॉइंट. ये सबको याद रखना चाहिए. अगर डॉक्टर ही बता रहे हैं तो उसमें डरने की क्या बात, राइट? नाउ लेट्स कम टू मेघा. मेघा, वेलकम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. आपको अनम्यूट करना है. और मेघा इज अ यंग लेडी जिन्होंने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है. शी इज अ माउंटेनियर, शी इज अ स्कूबा डाइवर. सो जो ये सारे जो एक्टिविटीज करती हैं, उसमें वो हाउ इज शी डूइंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज. सो मेघा, आप अपना शेयर कर सकते हैं. आप बताइए कब आपने शुरू किया, कैसे किया, क्यों किया, और इससे आपको क्या फायदा या नुकसान हुआ? एक्चुअली जो मैं 2018 में फर्स्ट टाइम एवरेस्ट के लिए गई थी और मेरा समिट नहीं हुआ था, क्योंकि माउंटेन्स पे और डाइविंग में दोनों ही जगह पे हमारे हार्मोन्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं. सो यहाँ पीरियड्स 5 दिन के लिए आते हैं, वह 2 महीने कंटिन्यू चलते हैं. सो हमारा ब्लड का कलर भी येलोइश हो जाता है, मतलब थोड़ा ऐसा लगता है किसी ने वो वैसे मिलाया जैसे भगवान जी को वो लगाते हैं ना, चंद्र कुमकुम टाइप का, केसरिया टाइप का. तो रेड कलर का भी नहीं होता है, बट कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है. तो जब पहली बार मैं एवरेस्ट गई थी तो मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कुछ नहीं पता था. टैम्पॉन के बारे में पता था, पर टैम्पॉन भी वन टाइम यूज करने के बाद ऐसा लगता था कि वॉशरूम जाते समय फिर उसको दोबारा मतलब वो नहीं होता था. अब सैनिटरी पैड पहनने की वजह से क्या होता था, कंटिन्यू 14-14 घंटे चलना है. तो रैशेस ऐसे हो जाते थे, मतलब पैर ऐसे छिल जाते थे अगल बगल से, स्पेशली हमारे शब्दों में कहें जांघें, कि उनको मन करता था कि चिंपांजी की तरह दूर दूर करके चले. वो पूरे छिल जाते थे. अब जब हम कैंप 2 कैंप 1 में पहुंचते हैं तो उसे डिस्पोज कैसे करें. सो हम लोग हमारे बैग में, मतलब कैरी बैग में, पॉटी बैग में उसे रख लेते थे, वापस लेकर आ पाते थे, पर फिर उसका वेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और कंटिन्यू 2 महीने की टाइम थी. जब मेरा अनसक्सेसफुल हुआ एवरेस्ट, मैं वापस आई तो मैं हर चीज के ऊपर वर्क करने का सोच रही थी. और एक पहली बार एवरेस्ट ना होने का कारण भी ये था कि स्पीड इसलिए स्लो हो गई थी कि पैर बहुत छिल चुके थे सैनिटरी पैड की वजह से. तो कई बार ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी. तो फिर मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पहली बार पता किया 2019 में. और मैंने मेंस्ट्रुअल कप पहली बार खरीदा और उसमें मीडियम जो साइज होता है वो यूज किया. और मुझे इतना कंफर्टेबल लगा कि उसके बाद मैं आज तक मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ. और मैं हमेशा उसको बहुत अच्छे से साफ करके प्रॉपर रखती हूँ 5 डेज का, जब मेरा सर्कल पूरा होता है तो. अब जब मैं दूसरी बार एवरेस्ट के लिए गई तो मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज किया और मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरे पीरियड कब चल रहे हैं. तो मुझे रेशेस नहीं होते थे. मुझे एक्स्ट्रा जो वेट हमेशा कैरी करके लेके आना पड़ता था वो नहीं होता था.
और मेरी आधी जिंदगी मतलब सुगमता से हो गई थी। सेम अब डाइविंग के साथ आते हैं। जब मैं डाइविंग करती थी तो यदि डाइविंग में मैं सैनिटरी पैड पहन के डाइविंग करूंगी उन दिन, तो किस तरह का अजीब सा मतलब आप समझ सकते हैं ना, स्विमिंग पहन करते समय आप यदि सैनिटरी पैड करेंगे तो कैसा गीला गीला आपको फील होगा। तो जब मैं मेंस्ट्रुअल कप पहन के डाइविंग करती थी, अंडर वाटर डाइविंग, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तो मेरी जीवन बड़ा सुगमता से रहा। पर मैंने लोगों से ये सुना कि वो तो गुम जाता है, ये वाली चीज मैंने बहुत सुनी। तो उसके लिए हमेशा मैं उनको बताती हूँ कि आप खड़े खड़े निकालोगे तो वो ऐसे नहीं निकलेगा। तो आपको हमेशा, जैसे हम बचपन में पॉटी करने वाली अवस्था में बैठते हैं, प्रॉपर वैसे बैठिए, और टॉयलेट करने वाला जैसा प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा वैसा लगाइए। तो आपको उसका उसका निप मिल जाएगा और आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो और वॉश कर सकते हैं। अब आप खड़े खड़े तो पॉटी भी करोगे तो भी वो नहीं होगी ना। तो उनको समझाना पड़ता है कि आप खड़े खड़े मेंस्ट्रुअल कप निकालोगे तो आपको खुद को प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप स्क्वाट पोजीशन लीजिए और फिर लीजिए। तो ये मेरे जीवन में मेंस्ट्रुअल कप आने के बाद बहुत चेंजेस आए, और मैं लोगों को तब से, महिलाओं को, लड़कियों को, उनको सजेस्ट करती हूँ। गाँव में इसलिए अवेयर करती हूँ कि मैं भी उन लड़कियों में से थी। हमारे यहाँ इतनी लड़कियां घर में 5 6 6 7 रहती हैं, तो मियाँ जो होती थी वो एक कपड़ा दे देती थी, मोटा चादर का। साल में 2 कपड़े, मतलब टुकड़े टुकड़े, जिनको हमें धो के बाथरूम में, मतलब ग्वाड़े के कोने में सुखाना होता था, जहाँ कोई पुरुष की छाव ना पड़े। तो वो बारिश के दिन में सूखता नहीं था, गंदी सी बदबू आती थी। दूसरा, उसमें मेरे वाले कपड़े में छिपकली ने अंडे दे दिए थे, वो मुड़े तुड़े कंडे के बगल में रखे हुए थे। तो मैंने वही कपड़ा यूज कर लिया था, तो मुझे पैरों में इन्फेक्शन हो गया था, तब से मैं पैड यूज करने लगी थी। और मेरे घर में क्या थी, हम 12 लड़कियां थी, तो इतने कपड़े कब तक किनको चद्दरें फाड़ के देंगे। तो हमारी दादी क्या करती थी, जिनको ज्यादा पीरियड्स होते हैं, जैसे मेरे को दूसरे दिन बहुत हैवी पीरियड्स होता है, तो हम लोगों को राख रख दी जाती थी, कि जो राख होती है वो अच्छे से सोख लेती है ब्लड को दूसरे दिन, तो ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो एक वो टाइमिंग था कि कपड़े में राख यूज किया ताकि वो सोख ले। और अब वो नहीं, जब मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ, सो ये दोनों तीनों चीजें देखी, और इसीलिए मैं गांव में बच्चियों को, इन सबको समझा पाती हूँ कि गर्भाशय कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण है कि वही मचलांदा सा अध सूखा कपड़ा, क्योंकि गांव में धूप में भी आंगन में नहीं डालते उस कपड़े को। अरे तोबा तोबा, छांव पड़ गई तो पुरुषों की मति भ्रष्ट हो जाएगी। तो उस कपड़े से यहाँ तक का जो सफर था, वो महिलाएं वैसे ही प्रॉपर ना सूखा हुआ कपड़ा घड़ी करके ऐसी जगह पे रखती हैं जो 1 महीने बाद फिर से उपयोग करती है, और उस कपड़े को 2 2 साल तक उपयोग किया जाता है, और जो सूखता नहीं। तो उसकी वजह से कई महिलाओं को इचिंग, दाने, फुंसियां, फोड़े और बहुत सारी बीमारी होने के कारण भी बनी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अनुजा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं मयंक जैसे लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो मेघा है, आप सच्ची, दे आर रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज फॉर पीपल लाइक अस हु वर्क इन द फील्ड, इजंट इट मयंक? आप लोगों की जो कहानी है रियली हम लोगों को मतलब आगे बढ़ने के लिए देती है कि हमें और काम करने की बहुत ज़रूरत है। पर एक छोटी-सी बात ये पूछना चाहती हूँ मैं, सॉरी, कि ये आपके जो हिमालय में जैसे अब आप जाते हैं माउंटेनियरिंग या कहीं पर भी, तो और भी तो लेडी होती होंगी, तो फिर पैड का कचरा भी तो होता होगा ना बहुत सारा? सो जितने भी फॉरेनर क्लाइंबर होती हैं वो ऑलरेडी बहुत पहले से मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं। हम लोगों के यहाँ कोई अवेयर ही नहीं करते, तो हमें पता नहीं होता है। और वो पैड यूज नहीं करते, या तो टैम्पून यूज करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं। सैनिटरी पैड का कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। पर सैनिटरी पैड जो मैंने बताया कि गार वो वेस्ट है, तो हम लोग हमारा एक पॉटी बैग कैरी करते हैं, जो भी क्लाइंबर होते हैं, हम उस पॉटी बैग में पैड को वापस लेकर आते हैं, उसे वो कई बार डिस्पोज नहीं करते। पर वो मेरे लिए वजन हो जाता था, क्योंकि हम जितने 6 दिन के, 6 दिन के भी एक्मेटाइजेशन पे गए, तो 6 दिन के जितने 6 पैड हुए, 6 7 पैड हुए, वो वापस लेके आना पड़ता था। फिर बेस कैंप में हमारा एक डिस्पोज का टैंक होता है, वहां तक पहुंचाना होता था। तो ये बड़ा गंदा और अजीब सा प्रोसेस रहता था, क्योंकि कुछ भी करो वो स्मेल करता था। बहुत ही हैरोइंग एक्सपीरियंस है, मतलब मेघा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि लाइक हैट्स ऑफ टू यू, यू नो, आपने ये जो जर्नी बताई आपकी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और वो भी इतने यंग एज में, और आपने वो सारा कुछ एक बहुत ही काम तरीके से हैंडल किया, एक्सपीरियंस किया, और अपने इवॉल्व होते गए, और आज आप सबको सिखा रहे हो। सो रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। क्योंकि यही बात है जो सबको सीखनी है। पहली बात तो वेस्ट हमें नहीं बढ़ाना है, वेस्ट ऑलरेडी बहुत है, वो भी अनमैनेजेबल है।
दूसरी चीज, अपने आप को क्यों तकलीफ देना, है ना? हमको जस्ट बिकॉज किसी ऐसे कि हमने वो किया नहीं है, हमने वो सुना नहीं है, इसलिए हम कर नहीं सकते। तो आप जानकारी प्राप्त करिए और आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे दो टेस्टिमोनियल्स ने बता दिया कि कितना अमेजिंग होता है ये शेयर करना और जानकारी खुद हासिल करना और रिसर्च करना और प्लस एक्सपीरियंस करना। उससे क्या ही हो जाएगा, जैसे कि मैत्री ने बोला, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, यू नो। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मयंक नाउ। मैं अब एज का जो वो है वो मैं एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर सकती, बट मयंक एंड देन आपके बाद में डॉक्टर पूर्णिमा। मयंक, आप बताइए, एज अ गाय आप इसमें इस फील्ड में हैं और ऑफ कोर्स सुन ही सकते हैं और किसी के साथ एम्पथाइज कर सकते हैं, सिंपथाइज कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या सोचना है इस पूरे चीज के लिए और द प्रोडक्ट के इवॉल्व होने होने के बारे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मयंक है और मैं अपना परिचय दे देता हूँ पहले थोड़ा सा कि किस तरीके से हमने काम शुरू किया और क्या हम करते हैं। तो मेरा एक सोशल एंटरप्राइज है समर्थ के नाम से, और हम लोगों ने 2015 से बिहार में, साउथ बिहार में अपना काम शुरू किया था, जिसमें हम एग्रीकल्चर इंटरवेंशन के में। यस, मैं म्यूट कर देती हूँ जो भी हम। जिसमें हम एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस के माध्यम से फार्मर्स की लाइवलीहुड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। तो हमने प्याज की खेती के ऊपर, मशरूम के ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर, इन सब के ऊपर हम लोग काम करते थे। और 2015 से 2020 में हमारे साथ करीब करीब 25,000 लोग जुड़े थे जिनके साथ हम काम कर रहे थे, और उसमें से विशेषकर 60% महिलाएं थी, तो जिसमें एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी थे और हम लोगों के साथ भी काम करते थे। तो होता कहता कि फील्ड पे ना कुछ कुछ दिन लोग आते नहीं थे, तो हमें समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो दैट वाज प्रोबेबली कि फर्स्ट टाइम हमने, मतलब मैंने एज एन इंडिविजुअल इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो हमने अपनी तरफ से थोड़ा इंक्वायरी किया, थोड़ा जानने की कोशिश करी, तो हमें समझ आया कि पीरियड्स की वजह से वो लोग आते नहीं हैं लेबोरियस काम के लिए, एक दो दिन के लिए। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था एज सच वन ऑन वन पीरियड्स के साथ। तो यहाँ से हमें थोड़ा समझ आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ चीज़ फील्ड पे प्रॉब्लम आता है। तो 2020 में तो हमारा जो है, हमारा ऐसा एनजीओ रजिस्टर्ड है एज अ ट्रस्ट। तो 2020 में हमने इसको एक ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और हम लोगों ने द पैट प्रोजेक्ट के साथ मिलके अवेयरनेस के ऊपर और एक एंटरप्राइजिंग मॉडल के ऊपर मिलके काम करना शुरू किया, जिसमें हम डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे लोकली। जैसे जो उनका अरुमुगम जी का मशीन था, उस तरीके का मशीन लगा के हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हमने अवेयरनेस के ऊपर काम किया, क्योंकि हम एज अ समर्थ, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि अवेयरनेस और एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच हैंड इन हैंड जाती है। तो हम एंटरप्राइज बिल्डिंग के साथ साथ अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ से मेरा पहला साक्षात्कार रहा जहाँ मैंने डायरेक्ट इंटरवेंशन करने की कोशिश करी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। बट हमारा ओवरऑल ये था कि हम जो महिलाएं या जो फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके लिए कोई एक प्रोबेबल सॉल्यूशन जाए और हम डिग डीप करें कम्युनिटीज़ के साथ। तो यहाँ से हम लोगों ने इंट्रैक्शन शुरू किया, और 2020 से 2022 तब कोविड भी आया था और बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लर्निंग फेज था। तो पहले ये रहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ कैसे करें, हमें ग्रांट भी आता है तो हम उसको कैसे आगे लेके जाए, बट हमें कम्युनिटीज़ के लिए भी इम्पैक्ट लाना है। और एक और चीज़ है कि मैं खुद इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके की कम्युनिटी में मैं काम करता हूँ वहाँ मैं डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि लोग इतने ओपन नहीं है कि एक मेल जाके वहाँ पे बात करें। तो ये मेरे लिए ऐसा था कि हाँ, हम बैकग्राउंड में बात कर सकते हैं, बट फ्रंट पे हम लोग खुद जाके बात भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी सब के बीच हमें द पैट प्रोजेक्ट से भी काफ़ी सहयोग रहा, और हम लोगों ने अपना अवेयरनेस के सेशंस और साथ में क्या कहते हैं डिस्पोजेबल पैड्स का यूनिट हमने डाल के उसका मार्केटिंग और सेलिंग शुरू किया। बट जो क्वालिटी वहाँ से आ रहा था पैड्स का, गिवन कि ये मैनुअल मशीन था, हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब एक बोला जाता है कि जितना भाई जिस तरीके का आपका मशीन है उसमें जिस तरीके का क्वालिटी आता है वो ओके है, बट
जब मतलब हम उसको टच करते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा रैश, मतलब वो रहता था, उसके एजेस बहुत ज़्यादा टॉपसी टर्वी थे और मतलब हाथ पे लगने से ही रगड़ आ जाती थी। तो मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था, बट लोगों का ये रिस्पॉन्स था, मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहता था कि हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो इन सब के बीच में हमने क्या रियलाइज़ किया कि लोगों के पास क्योंकि सॉल्यूशंस नहीं है, तो उनको अगर कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो कहते हैं कि कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर ही है। परंतु जब हम लोग खुद ही हाथ लगा के देखते तो हमें लगता था कि रैशेज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे जैसे और कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ना शुरू किया तो हमें जो उनके इनहिबिशंस रहते हैं, जो एक रहता है कि राइट बेस्ड चीज़ होती है और एक वैल्यू बेस्ड चीज़ होती है। तो अगर मैं डेमोग्राफिक्स की बात करूँ तो हम हिंदू कम्युनिटीज़ और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ दोनों के साथ काम करते हैं। बट क्योंकि हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो हम लोगों को सब चीज़ों को समावेश लेके चीज़ों को आगे लेके जाना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम अवेयरनेस फ्रंट के ऊपर काम करेंगे और साथ में हम लोग क्या कहते हैं इन्फॉर्म चॉइसेस की तरफ उनको लेके जाएंगे। क्योंकि हम लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट हम काम कर रहे हैं, तो गया में अगर मैं 24 में से 21 ब्लॉक्स में काम करता हूँ तो हर जगह की मतलब माइक्रो क्लाइमेटिक जैसे हम बोलते हैं, हर जगह की चीज़ें अलग होती है। कुछ अलग मार्केट होती बहुत पास है, कुछ लोग हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, कुछ है। लोग हैं हाँ। कि जिनकी एजेंसी बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बिहार में क्या हुआ है कि जीविका SRLF स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से पिछले 15 साल में महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करने लगी हैं और कहीं कहीं पे माइग्रेटरी इकोनॉमी भी होती है। तो महिलाओं को घर से निकलना पड़ता है जहाँ वो रेगुलर वर्क में इन्वॉल्व होती है। तो 2020 से 22-23 आते आते हम लोगों ने किया कि केवल पैड्स ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हमें दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। तो चाहे वो रीयूजेबल पैड्स हो, वॉशेबल पैड्स हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल कप्स हो। और फिर हमने थोड़ा सा देखा, क्योंकि हम एक बार किसी चीज़ पे स्टार्ट करते हैं ना तो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करते हैं, अच्छा आपने पैड्स तो कर दिए, अब आप उसको कैसे जलाएंगे या कैसे आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आने लगे थे। बट इसी बीच में हम लोगों ने अपना अवेयरनेस का करिकुलम काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया और हम लोगों ने सेपरेट मॉड्यूल्स बनाए कम्युनिटीज़ के साथ इंटरवीन करने के लिए। तो हम लोग प्री मिनार गर्ल्स के साथ काम कर रहे थे, फिर उनकी मदर्स के साथ हम लोग एंगेज कर रहे थे रेगुलरली। इसके साथ में हम लोगों ने एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ एक सेपरेट 12 हफ्ते का एक करिकुलम लॉन्च किया, जहां हम पीरियोडिकली हर हफ्ते एक बार उनके साथ 30 से 45 मिनट का सेशन करते थे। इसी तरीके से हमने स्वयं सहायता समूह और कम्युनिटीज़ में एक दिन का करीब करीब 1 घंटे का सेशन हम लोगों ने स्केड्यूल किया कि जिससे हम महिलाओं और मेंस्ट्रुएटर्स तक अपनी रीच को बढ़ा सकें। और पिछले 1-1.5 साल से हम लोग मेन इन मेंस्ट्रुएशन पे भी थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड टच, बैड टच हो गया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फीमेल एनाटमी एज वेल एज मेल एनाटमी उनके लिए। और हमने 2024 से मेंस्ट्रुअल कप्स में भी इंटरवीन किया। कुछ चीज़ें जो हमको समझ आई कप्स के साथ कि यदि कोई मोबिलिटी के हिसाब से, एजेंसी के हिसाब से देखना चाहता है, तो आई थिंक कप शुड बी द बेटर चॉइस। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर तरीके के तबके के लिए या हर तरीके के स्ट्रैटा के लिए कोई भी प्रोडक्ट सही है या गलत है। बट जो मैंने सुना है, जो हमने जाना है कि हर एज के लिए या आपके जिस तरीके का काम रहता है, हर के हिसाब से एक डिमांड फिट प्रोडक्ट हो सकता है। तो जैसे मेरा पर्सनल मानना ये है, क्योंकि जब एडोलेसेंट्स ग्रो करते हैं तो उनमें बॉडीली चेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वेदर पैड और वेदर कप इज़ द राइट सॉल्यूशन देयर और नॉट। Definitely. बिकॉज एक बार यदि उनको शुरू में कोई हिचक आ जाएगी तो वो ज़िंदगी भर रहेगी। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक पैड्स एंड समथिंग, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो हम लोगों ने जब अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, सबला कार्यक्रम है हमारा, तो हमने उसमें फोकस किया कि हम पहले 100 महिलाओं को प्रेरित करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करने के लिए। और उसमें हमने जनरली मैरिड लेडीज़ को किया, हाँ। क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि यदि बच्चा हो जाए और यदि आप मैरिड है तो आपके बॉडी चेंजेस जो होने होते हैं वो हो जाते हैं, तो योर बॉडी इज एट सम स्टेबिलिटी। तो एक हमने वो लिया। दूसरा ये है कि जो कि वर्किंग में है, तो दे हैव सम काइंड ऑफ एजेंसी एंड मोबिलिटी, एंड दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड देमसेल्व्स। तो अगर वो कन्विंस होती हैं तो दे कैन एक्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थिंग्स। तो दे कुड चैंपियन दिस कॉज। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ऑन फील्ड। ये हमारा रैशनल है और इसी के तहत अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमारा अभी जो मुख्य केंद्र है, हमारा जो अभी मुख्य फोकस है वो ये है कि हम लोग अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन को अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। साथ में हमारा अभी एक ऑटोमेटिक सैनिटरी पैड मशीन भी है, जिसको हम हब एंड स्पोक मॉडल में कम्युनिटीज़ के साथ सेल आउट कर रहे हैं।
बट इसके साथ साथ हम लोग इन्फॉर्म चॉइसेस देने के लिए, बास्केट्स के लिए हम सारे प्रोडक्ट्स अपनी कम्युनिटीज़ में बताते हैं, और कुछ लोगों के साथ हम स्पेसिफिकली पायलट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी 2024 से मैंने किया, तो हम लोगों के माध्यम से अभी तक हम 50 महिलाओं को प्रेरित कर पाए हैं कि वो कप्स को यूज़ करें। और अभी हमारा ये है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट होगा, थोड़ा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, लोग जैसे जैसे कन्विंस होते रहेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि वो नंबर थोड़ा आने वाले समय में बढ़ जाएगा, और हो सकता है 50 से जल्द ही 200 हो जाए। तो इस तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। But that's a very nice, Mayank. I'm really amazing to hear, Anuja. आप है मॉडरेटर के रूप में, बट मुझे तो बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैत्री हो, मेगा हो और मयंक हो. This Triple M has given a very nice, the whole story of life. Wonderful. Thank you, Mayank. Thank you for a nice. Yeah. बहुत ही अमेजिंग है आपने जो कहा मयंक, बिकॉज अर्बन और रूरल एक बहुत ही अलग सिस्टम है, बहुत ही अलग माइंडसेट है, सब कुछ अलग है, प्रोफाइल अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है, माइंडसेट अलग है, यू नो वहाँ की जो रूढ़िवादी काइंड ऑफ जो चली आ रही हैं उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है. तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम टू वर्क इन रूरल, एंड कुडोस टू यू कि आप लोगों ने ये काम शुरू किया है. आई एम श्योर ये एक लंबा काम है, बड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन ऑफ कोर्स टुगेदर हैं हम. इसका आज का नारा ही ये है, टुगेदर फॉर पीरियड फ्रेंडली वर्क. और ना अनुजा, मुझे मयंक ने जब पहली बार मैंने बात की थी ना, मुझे मयंक की एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं अभी तक बहुत लोगों से बात करी हूँ ना, सब नंबर्स में बहुत ज्यादा बताते हैं. हमने 400 को बांटा, 500 को किया. मयंक का अगर 50 है ना, तो 50 है. दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि हाँ 50 है, लेकिन वो 50 कंफर्म है. So these thing I really like about him, that whatever the numbers are there, they are really sure numbers. वेरी नाइस. थैंक यू मयंक फॉर शेयरिंग. नाउ अब हम ट्रिपल एम से एस पे जाते हैं, मतलब पी पे जाते हैं. डॉक्टर पूर्णिमा शेषाद्री, वेलकम. एंड आपसे सुनना चाहेंगे what have been your experiences, and what do you recommend, why do you recommend, and your journey in this. Mm. Share. Yeah. Thank you. First of all, namaste to everybody. Thank you so much for giving me this opportunity to be here today. मुझे नहीं पता मैं हिंदी में इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं. It's actually so inspiring to hear the stories of the speakers before me, because जैसे कि आपने बताया, somebody at an age of 13 to have the kind of understanding कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, to do the kind of research that she has done, right from Maitri to Megha, I mean it's so inspiring, to know. So let me tell you at the outset कि मेरी story inspiring नहीं है, but I'm still glad this opportunity to share whatever little my learning has this journey. So initially, to everybody. Yes, your voice is breaking a little, but Okay. Yeah, you can speak. So initially, I had heard of cups on social media and read about it here and there. बहुत मैंने सुना था और मुझे चाह थी, to make the switch. But as most of the people, I had 1,000 doubts in my head, and I had a lot of questions कि what if, how do I go about it? तो मैंने कभी हिम्मत नहीं करी, to make the switch, or to even a lot of people, they kind of listen or they see people and they kind of buy a cup and keep, and then कि अच्छा फ्यूचर में कभी स्विच करेंगे कि, पर मेरी उतनी भी हिम्मत नहीं हुई कभी. I wanted to, but I don't know what I was waiting for. But one fine day, I think this was about 4 years ago, that I'm part of another organization, and they had there was a climate change vertical, so they had organized a very informative session on sustainable products related to menstruation. और उसमें मैंने cups के बारे में
में जानना। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आई थिंक कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि इट इज नॉट अनयूजुअल, इट इज समथिंग विच वी कैन ट्राई, हम कर सकते हैं। और ऐसे ही काफी सारी मिथ्स उन्होंने भी बस्ट करी थी कि ये नहीं कि फंस जाएगा, हाउ डू यू वेयर इट, हाउ डू यू रिमूव इट, हाउ डू यू मेंटेन इट, और वेरी सिंप्लीफाई करके उन्होंने समझाया था। विच इज व्हेन आई मेड द प्लेज कि मैंने खरीदा तो, और मैंने immediately in my next cycle I made the attempt to use it. And I think that's all it took for me. I think 1 or maximum 2 cycles is all it took for me to understand कि first of all ये डरने की कोई चीज नहीं है इसमें, number one. Number two, the benefits are just far too many, you know, for us to even think कि ये करना है नहीं करना, उससे पहले तो realize कि comfortable तो है ही है. Along with that, you're making such a big impact to the environment around you and for your personal health. Monetarily, you're saving so much money. It's just good on so many levels. और मैं ये सोचने लगी कि it has taken me so long to realize ये सारी चीजें. How do I spread this to more people? You know, I did not know how to go about it. I did not know whether I was sure, whether I was even qualified enough to talk about it, sort of a thing. But मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे या मेरे आसपास जितने भी लोग थे, मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स, I have spoken about this with everybody. Then fortunately last year I got the chance of, I'm a part of another club like Rotary. It's for youth. It's called Roundtable India and Lady Circle India. It just happened कि when I took up the role, one of my major things, motive of the year, I wanted to adopt sustainable menstrual practices as one of my major aims. और मैं सोचने लगी कि इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ, how can I make a difference really now that, you know, I have a position and I will definitely have access to groups. And to even the way about कि रूरल पॉपुलेशन में बात करने की कितनी सारी चैलेंजेस होती हैं, उनका माइंडसेट. एंड ऑनेस्टली थ्रू माय एक्सपीरियंस, इवन स्टूडेंट्स हो या वर्किंग वुमेन हो, मेरे जैसे एजुकेटेड पीपल हो, इवन हमारे माइंड को भी बदलना बहुत मुश्किल है. वो माइंडसेट बन जाता है दैट दिस इज नॉट नेचुरल, एम आई डूइंग द राइट थिंग, विल इट हार्म माई बॉडी, कुछ फंस गया नहीं निकला, इसकी वजह से मेरी पीरियड्स अफेक्ट तो नहीं होंगे. उनके भी मन में इतने सारे डाउट्स होते हैं, you know. And it's only through my journey in this last 1 year that I fortunately came in touch with Mrs. Neelam. And unhone, I think she was instrumental in kickstarting the fire, you know, कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे confidence दिया कि नहीं, you are on the right path. You know, we will start somewhere and we will get somewhere for sure. Don't worry. Effort हम जरूर डालेंगे. And I mean, it's the major reason for my confidence to take the MG. So really all thanks to her. And fortunately, I think जहाँ चाह है वहां राह है, जैसे बोलते हैं, that is what happened with me. We were able to execute this and sensitize groups जिन्हें इस switch से actually बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. So we started. I was very clear कि अगर मैं स्कूल के बच्चों के पास जाके इस सब के बारे में बात करूंगी, they are not going to be the decision makers in their house. वो नहीं जाके अपने माँ से बोल पाएंगे कि throw that packet of sanitary napkins, अब मुझे कप लेके दो. वो it's not so easy, you know. But whereas when somebody is informed, probably in the border of being a bit educated or being employed in some way, जो अपने health का decisions खुद ले सकते हैं, they are the kind of people who we should start with. So I started mentally making a note कि जैसे nurses होते हैं, उनका वर्किंग आवर्स होते हैं, वो लोग रात भर को शायद इस बारे में पता भी हो सकता है, बट इवन देन इफ वी आर देयर टू मिस द बट यू नो, टू मिस द सो मेनी misconceptions that they have, to basically remove the taboo and talk about it freely. So those are the kind of people that we started with. Unfortunately, we got a very breakthrough connect with the traffic police women of Chennai City Traffic Police, and we were able to do a mega project where we were able to sensitize and give menstrual cups to 600 plus women jo duty karti hain, you know, on the signals, on the roads, because like he was saying, there were so many absentees because of
your 3 to 4 days of menstruation. लोग ड्यूटी नहीं कर पाते थे या ड्यूटी पे चले तो जाते थे पर उनके पास वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है, to change a pad or to wash themselves. So how path breaking is this to explain to them? जब उनको हमने समझाया, जब उनको हमने सिखाया, जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, तो उन्होंने हमें ये फीडबैक भी दी कि हाउ कम हमें इसके बारे में अभी तक पता नहीं था, like such a big improvement from the way they were handling their lives, the way they were handling activities. And when I explained to them कि जो लोग डांस करते हैं, जो लोग स्विम हैं, जो लोग ऐसे माउंटेनियर्स हैं, they have using the, so it was a very, and we are continuing to do as much as possible, as much cupworting as possible. और मेरा aim यही है that it's not just restricting it to this 1 year. I hope we are able to make a difference to a lot more lives, to a lot more women, because this is the need of the hour. I think इसके बारे में freely बात करना, लोगों को समझाना common चीजें हैं. This is nothing extraordinary. We do not have to hide from people, to use a product. We can speak about it to our family, to our friends. It's as basic as that. So that is my endeavor. Thank you. Thank you so much, Dr. Purnima, because see, हमको वो that point of conversion, that transition, जब हम लोग decision लेते हैं, it's all about decision. अवेयरनेस है, एक्शन भी ले सकते हैं, बिहेवियर चेंज भी करना चाहते हैं, क्लाइमेट एक्शन के बारे में भी सुना हुआ है और हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. एवरीथिंग इज देयर, बट एवरीथिंग कम्स टू दैट डी फॉर मेकिंग दैट डिसीजन. तो ABC जो है वो तो रहते ही है, लिंगर करते ही है हमारे लाइफ में और हमारे एनवायरनमेंट में. हम इंस्टा पे कोई वीडियो देखा, यूट्यूब पे देखा, बोलेंगे ओ माय गॉड आई एम सो इंस्पायर्ड, एंड देन फुस. सो दैट to take it to the next level and to actually make it happen, that decision is only with the person, herself or himself. So जो भी आप लोगों ने उस D के ऊपर पहुंच गए, so congratulations. I have no words. इतनी amazing बात है. Like we have students here, we have so many girls here who said this कि नहीं, I'm still hesitating, I'm still thinking, I'm not sure, I'm I don't know. ये सारे जो हैं वो हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में आते हैं. बट माई पॉइंट इज, दिस इज अबाउट योर ओन लाइफ, दिस इज अबाउट योर ओन बॉडी, which we think we can't control, but there is something that you can control. At least try. If it works out, great. If it doesn't work out, no problem. But जब तक हमने try ही नहीं करा, तो हम उस first step से second step कभी नहीं जा सकते, है ना? It's something to be tried. Yes. So amazing. Thank you. I would like to come to Neelam now, क्योंकि हमको एक सब लोगों को क्वेश्चन आंसर वाला भी थोड़ा सा टाइम देना है, and we have kind of 10 minutes left. So Neelam, you have been experienced in this. आपने सबके साथ interaction है. I would like you to share specially, क्योंकि हमारे पास कोई representation नहीं है उस ग्रुप से, but I know that आपने ये किया है, the blind girls school में जो that experience, I would really like you to share with everyone. Thank you Anuja. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंस्पायरिंग स्टोरीज लाइक मयंक की, जो एग्रीकल्चर में काम करते हुए उन्होंने महिलाओं की प्रॉब्लम को समझा एक मैन होते हुए. ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. खासतौर से डॉक्टर पूर्णिमा मेरे साथ बहुत शेयर करेंगी. 2 एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ. नंबर 1 ये कि चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वुमेन का किया हो या मैंने अभी सदर्न रेलवे का 1 साल से मैं कर रही हूँ. मजे की बात है कि सदर्न रेलवे के जो हेड है DRM सर, वो मेन है. उन्होंने मुझे असाइन किया इस प्रॉब्लम पे बात करने के लिए. ऐसे ही डॉक्टर पूर्णिमा और हम जब ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस से मिलने गए ट्रैफिक पुलिस में, एडिशनल पुलिस कमिश्नर मेन सुधाकरन सर, he understood the problem and he gave the green signal. So it's really nice to see people like Mayank and Sudhakaran sir or DRN sir, whom I have contact with, that they are becoming more sensitive about this problem. Then only we can take care of this, like हमारे लिए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड का जो सपना है वो पूरा होगा.
सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और जो मेरी पूरी जर्नी में ब्लाइंड गर्ल्स का जो एक वो एक स्पेशल प्लेस है। मैं जब भी ब्लाइंड गर्ल्स के लिए करती हूँ, मैं साल में 1 या 2 बार जरूर करना चाहती हूँ। मैं जब भी ब्लाइंड गर्ल्स के लिए करती हूँ, मजे की बात है अनुजा, मुझे 3 से 4 घंटे कर लगते हैं एक वर्कशॉप में। क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, उनको साथ में बिठाना पड़ता है, उनके साथ नीचे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठकर उनको एक गोल घेरा बना के, उनकी जो टीचर है उनके साथ हर को सबको पहले हाथ में कप देना पड़ता है और फिर सिखाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अक्सर मुझे उनके टेस्टिमोनियल्स ये मिलते हैं। मुझे वापस बुलाया था और उन लड़कियों ने मेरे को एक शॉल उड़ाया और ये बोला कि आंटी थैंक यू, क्योंकि हम पैड, हमारे यूज्ड पैड्स हम मेड को देते थे थ्रो करने के लिए और वो हमें गालियां देती थी। डेफिनेटली इट्स ह्यूमिलिएटिंग। उस ह्यूमिलिएशन से हम बच गए और हमारे लिए ये बहुत ही यूजफुल सिद्ध हुआ। तब मुझे लगा कि मेरी पूरी जर्नी की शायद सबसे बड़ी सफलता मुझे वहां मिली। ऐसे ही मैं एक दिन हेलमेट नहीं पहनी थी, आई एम सॉरी, पहनना चाहिए पर मैं नहीं पहनी थी। तो मुझे रास्ते में मेरे घर के पास में ही एक स्क्वायर पे एक ट्रैफिक पुलिस वुमेन ने रोका और रोक कर मुझे बोली मैम साइड में लीजिए। मैंने कहा गए, आज तो 5,000 रुपीज का फटका लगा। लेकिन उसने मुझे सिर्फ इसलिए रोका, मैम मैं आपको आज कुछ नहीं बोलूंगी, आप चले जाइए, पर आपने जो है, मैं तो नहीं थी उस वर्कशॉप में, पूर्णिमा थी, बट मेरी डॉटर थी जो मेरे साथ पीछे बैठी थी। बोले मैंने इसको देखा, ये आप कौन है, आपने मुझे कब दिया? देन माय डॉटर सेड ये मेरी मम्मी का काम है। शी थैंक्ड मी कि हमने उसे कब दिया। तो मतलब मेरी बेटी को पहचान के तब मुझे लगा डॉक्टर पूर्णिमा ने जो काम किया हम लोगों के लिए, हमारे साथ मिलकर, मेरे साथ मिलकर, इट वाज वर्थ डूइंग। एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, kindly convert people, everyone to cupboard, and especially people like who are जो रूरल उसमें जुड़े हुए हैं, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि आप ये काम करते रहें और थोड़ा सा कप को प्रमोट करने में हेल्प करें। दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। थैंक यू नीलम, थैंक यू। मैं काफी सारे लोग हम जानते हैं, काफी सारे नए जुड़े हैं आज, और इसलिए अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री, आप इस वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले 10 मिनट तक द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आवर एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस होल्डर्स विल गिव द आंसर्स। बताइए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भावना, आपके पास कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो नहीं है मैम, लेकिन आई थिंक आप सबकी स्टोरीज ने जो एक मेरे अंदर भी वो हेजिटेशन टुवर्ड्स यूजिंग दिस अभी तक था, आई थिंक अब मेरा नेक्स्ट साइकिल में अब वो टूट गया है पूरा अच्छे से, एंड मेरा जो नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, सो आई एम डेफिनेटली गोना यूज दैट एंड शेयर माय एक्सपीरियंस मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी कनेक्ट, बिकॉज कब से थॉट में इधर लास्ट टाइम पीरियड्स की पाठशाला में भी किया था, तो आई थिंक वो जस्ट वो इतना सा फियर जो कि ट्रू भी नहीं है, जस्ट अनइमेजिन्ड है, लाइक सर हेड पे ही है। तो आई थिंक वो आप सबकी वो स्टोरी से और ये ऐसी प्लेसेस से काफी सपोर्ट मिला है, तो आई थिंक इफ आई यूज इट देन द शेयरिंग विल गो ऑन फर्दर टू विद माय सिस्टर इज आल्सो हियर, मैंने उसको भी इनवाइट किया था सो दैट वी ऑल कैन बी हियर टुगेदर इन दिस जर्नी, और कजिन्स को भी बोला था, सबने नहीं किया, बट एक ने किया, तो बट टुगेदर वी कैन डू इट, आई थिंक सो। सो थैंक यू सो मच। भावना एक और छोटी सी बात आपको बोलूं, नॉर्मली एक बात और आप याद रखना कि कप के लिए ना, कप यूज करने के लिए आपको पीरियड का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप Okay. अगर है ना अपने नॉर्मल टाइम में भी आप कप हाँ, को यूज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आपका okay. पीरियड आए तब आप तक थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, दैट इज अगेन Okay. प्लीज, ये पैड के साथ नहीं हो सकता लेकिन कप के साथ हो सकता है।
Okay, yes, thank you, yeah. हाँ, क्या होगा कि जब आपका पीरियड आएगा तो आप थोड़े कंफर्टेबल रहोगे और इजीली आप उसको यूज कर पाओगे, हम्म है ना? क्योंकि पीरियड के हम्म टाइम पे हम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं, पीरियड पेन होता है, क्रैम्प होते हैं, है ना? तो ये एक छोटी सी बात याद रखना, एक टिप है ये। थैंक यू नीलम मैम, इट विल हेल्प। मैं Gayatri, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी ट्रायल करूंगी। yes, थैंक Maitri, यू। saying something? Yeah, I was telling that if you think about lubrication, तो we only have that जब periods होते हैं। तो अगर हम ड्राई वजाइना में कप इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे तो इट विल बी इवन मोर पेनफुल, क्योंकि नहीं देयर नहीं इज नो होता। ब्लड ना। हाँ नहीं मैत्री, नॉर्मली 2 पीरियड्स के बीच में हमको वाइट डिस्चार्ज भी होता है ना, तो हमारा जो वेजाइना होता है वो हल्का सा म्यूकस रहता ही है, ऐसा बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता। आपको जैसे आप नहा के निकले हैं ना, तब आप आराम से यूज कर सकेंगे, आपका थोड़ा बॉडी ल्यूब्रिकेट होता है उस टाइम पे, तो आप ट्राई कर सकते Mhm. Mhm. Okay. Any other thought, any other question जो आप share करना चाहेंगे, participants? एंड वन मोर थिंग, आई एम सॉरी अनुजा, मैं अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहूंगी, ऑल ऑफ यू हु आर हियर, kindly a very humble request to promote made in India का। See there are many brands available, आप अगर ऑनलाइन भी यदि लेते हैं, हम नहीं बोलते कि हमसे ले या किसी से ले, काइंडली सी टू इट के मैन्युफैक्चरर आपके मेड इन इंडिया हो, क्योंकि वो जो मेड इन इंडिया कप बन रहे हैं उनकी क्वालिटी अमेजिंग है और बहुत कम लोग बना रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह के साथ बना रहे हैं। तो अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप कप यूज करें तो हमारा प्राइड मेंसुरल कप भी मेड इन इंडिया है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन भी लेते हैं तो काइंडली सी द मैन्युफैक्चरर प्लीज। Yeah, and I think एक और जो स्टेम और विदाउट स्टेम है, मैं चाहती हूँ कि आप वो भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे हाँ नॉर्मली स्टेम वाले जो कप होते हैं, नॉर्मली बहुत लोग मैंने देखा है ले तो लेते हैं, फिर उसका स्टेम कट करते हैं, क्योंकि स्टेम पोकिंग होता है। हम लोग जो कप प्रमोट करते हैं उसमें जानबूझ के छोटा सा स्टेम रखा है, क्योंकि स्टेम की जरूरत होती नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्टेम से ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं, उन्हें पता नहीं रहता, तो उनकी जो विजाइनल वो है वो उसको नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम लोग स्टेम को हटा दिया है, छोटा सा नॉब है, ताकि आप उसको पिंच कर कर ही निकाल पाए। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप स्टेम वाला भी लें तो स्टेम कट कर दें, लेकिन स्टेम वाले कप अक्सर चाइनीज ही हैं। इंडिया वाले जो कप है मेड इन इंडिया नॉर्मली विदाउट स्टेम या बहुत छोटे से नॉब के साथ ही बन रहे हैं। Yeah. So, वो एक And all of you who are here, you can organize our period की पाठशाला anywhere you want. यस, हम लोग ऑनलाइन करते हैं, हम क्योंकि अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट सोचने लग जाएं, उनको ये फॉरेन कॉन्सेप्ट ना रहे। सो सबसे पहले वो जो एक ब्रिज है फ्रॉम, जैसे कि मयंक ने कहा था, कुछ नहीं से कुछ, तो हम वो वहीं पर हम उसको सही तरीके से बताना चाहते हैं कि आपके पास ये भी एक ऑप्शन है। यस, ऑल्टरनेटिव्स हैं सबके पास, और वो उनकी वी रिस्पेक्ट कि वो उनकी खुद की चॉइस रहेगी कि वो क्या यूज करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑल्टरनेटिव्स बता दिया जाए और ये भी बता दिया जाए कि इसके कारण ये हो सकता है, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये हुआ है। और जैसे मेघा ने कहा कि उन्होंने वो खुद एक्सपीरियंस किया जब उनको रैशेज हुए और वो चल नहीं पाई और जो भी कुछ हुआ, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं करती तो, या कोई दूसरा, तो शायद वो ऐसी बोलती कि नहीं नहीं, मैं मैनेज कर सकती हूँ, इतना कुछ नहीं होता होगा, इतना कुछ नहीं होता होगा। बट व्हेन शी वेंट देयर एंड शी एक्सपीरियंस्ड कि 5 दिन हैव बिकम 20 days, है ना, कि पूरा साइकिल ही अपसाइड डाउन हो गया है पूरा। इसके पहले भी एक दूसरे एवरेस्टर सुविधा हमारे साथ आई थी और उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है वहां पे जाके ऑक्सीजन लेवल के कारण, और वो प्रोलॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ये सारी चीजें, हर कोई एवरेस्ट पर नहीं जा रहा है,
लेकिन आप ये सोचो कि अगर इतनी कठिन टाइम में, इतने एडवर्स कंडीशंस में अगर कोई प्रोडक्ट आपको सहूलियत दे रहा है या आपके लाइफ को इजी बना रहा है, तो जब नॉर्मल टाइम पर वो क्यों नहीं कर सकता? अब मैं एक और बात अनुजा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अगेन वो मयंक की बात है कि एडोलेसेंट गर्ल जो होती हैं, नॉर्मली मैं मैत्री इज रियली एन एग्जाम्पली एग्जाम्पल, और मंजरी और मैत्री दोनों इस बात के लिए बहुत तारीफ के काबिल हैं। पर यस, यदि मेरे लिए भी बहुत छोटी बच्चियां, अगर आजकल 11-12 साल की बच्चियां होने लगी हैं, मैं उनको भी नॉर्मली कप का सदा कम करती हूँ। अगर उनकी मदर्स अलाउ नहीं करती तो मैं भी उनको अलाउ नहीं करती। हाँ, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो थोड़ी बड़ी हैं, अबव 18, दे शुड मेक ए गुड चॉइस। इवन आप बड़ी हो गई और अगर आप अब भी मान लीजिए आप 35-40 की ईयर्स में हैं, तो आप कप यूज करिए और फिर आप अपनी बच्चियों को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। इवन हमसे भी अच्छा आप उनके गाइड बन पाएंगे। यस, तो जो गांव में खेतों में काम करती हैं या जो कहीं पे भी काम करती हैं, दे आर ऑल वर्किंग वुमेन, एंड आई थिंक कप इज द बेस्ट थिंग फॉर देयर वर्क प्लेस। यस, आई आई अग्री। एंड बहुत सारे लोगों से ये हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। सो हमको जब हम बोलते हैं कि हमें पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाना है टुगेदर, सो इस वर्ल्ड में चॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट। एंड वंस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी खुद की चॉइसेस नहीं बना सकते। तो यू नीड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कि आपकी चॉइसेस क्या हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स जब आप चॉइसेस बनाएं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट आप सोचें कि आप आज जो कर रहे हो उससे आपके कल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सो आई डेफिनेटली डोंट प्रमोट कि कोई ब्लीच्ड सिंगल यूज प्लास्टिक के नैपकिन्स यूज करे। और वो हमने जैसे कि जेडपी स्कूल्स में जब सर्वे किया तो पता चला कि लड़कियां 24 आवर्स, एक एक दिन तक एक ही नैपकिन यूज कर रही है, बिकॉज दे डोंट हैव द पीरियड पावर्टी एग्जिस्ट फॉर देम, दे डोंट हैव द मीन्स टू चेंज इट। एंड उन्हीं के लिए हमने ये एक प्रोग्राम बनाया था जब हम बाय वन एंड गिफ्ट वन कप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्रांट कैंसिल हो गई और हम वो अब तक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम ज़रूर आने वाले समय में उसे पूरा करेंगे। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किसी दूसरे को भी सही सही रास्ता बता सकें। एंड आप सब लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करी, एक्सपीरियंसेस शेयर करे। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड it has been a wonderful 1 hour, कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और sorry, I really am thankful to all, especially Mayank, Dr. Purnima, and Maitri and Megha. All of are busy persons. Even you also. Today you have a West Warrior Day and all. You are all very big. So today is a 28th day, 28th May, and in the morning मैंने nurses के साथ में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वर्कशॉप करी है, वहाँ 40 कप्स डिस्ट्रीब्यूट किए, and it was a good experience. And this experience is wonderful. Thank you very much. अगर किसी को कुछ और शेयर करना है, आई रिक्वेस्ट कि आप कर सके। और अदरवाइज आप लोग वी आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन पीरियड्स की पाठशाला। हमारा ग्रुप है जिसमें हम सेशंस करते हैं, और अब हम इस आज के दिन से हम वापस से उसे शुरू कर रहे हैं, बिकॉज थोड़ा एग्जाम्स और वो सब के कारण हमने थोड़ा हमारी फ्रीक्वेंसी कम कर दी थी। तो भावना, इफ यू वांट टू शेयर दैट लिंक दैट पीपल कैन ज्वाइन, और मैत्री, whoever wants to, तो चैट में वो लिंक ग्रुप की शेयर कर देंगे और यू कैन ज्वाइन दैट। हम हर हफ्ते में एक बार वो सेशन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है, और वो रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं। तो जो भी अपने सवाल या प्रॉब्लम्स या कुछ परेशानियां हैं वो शेयर कर सकते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि आप कौन से योगा के आसन कर सकते हैं टू ईज द पेन, या फिर वी हैव गायनेकोलॉजिस्ट। सो हमारे पास एक वैरायटी ऑफ लोग होते हैं जो आते हैं और सब लोगों के क्वेश्चंस मतलब उसमें हम लोग ना पीरियड पेन से आपको कैसे प्रॉब्लम राहत मिल सकती है, पीरियड क्रैम्प है, वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम, ये सब चीजों पे बात करते हैं। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें इस टॉक की जरूरत है, किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है या उनकी क्वेरीज है, आप उन्हें वो लिंक दे दीजिए और वो हमसे उस पीरियड की पाठशाला में जुड़ के बात कर सकते हैं।
So every Saturday, I think, Anuja, 6 p.m. period की पाठशाला. Yes, that has been the time जो हम लोगों ने करा है, और वही टाइम हम रखना चाहेंगे क्योंकि वो सब लोगों को इजी होता था. भावना, आर यू एबल टू कॉपी एंड पेस्ट द लिंक हियर? ताकि वो लोगों को लिंक मिल जाए. मुझे नहीं पता कितने सारे लोग ग्रुप में हैं, कितने नहीं हैं, इसलिए आई थॉट कि हम बाय बोलने से पहले उस लिंक को यहाँ पे पोस्ट कर दें. Good evening. Yes, yes. Hi, Vinita. Yeah. Happy World Menstruation Day to all of us and to the others. I'm sorry I could not join the call because I was also a part of distributing menstrual cups. We collaborated with Stone Soup. Oh, very And nice. okay, and I was distributing, and we were doing an awareness session to the slum cluster, which is just so I'm from Bangalore. So I Okay. really wanted to join and when I saw the message, I said, let me join, but I was busy over there and made it. Yes, we should. But I have one thing, because when we did the distribution of these menstrual cups, तो Yeah. इन्होंने कहा कि हम टीनेजर्स को ये कप्स नहीं दे सकते, यानी कि कुछ और अलग तरह के कप्स है जो कि टीनेजर्स को दे सकते हैं. तो आपने जो ये मेड इन इंडिया वाला कहा, तो वो क्या सबों के लिए है कि नहीं, उसमें विनीता जी 3 साइज है. एक स्मॉल है. Yeah, it's the same, small, medium and large. No, I'm not talking about the size, but they told that there is some different kind of cups which can be given to them. Stone Soup does not have for, so we gave it to नहीं, उसमें 3 साइज है. जो स्मॉल वाला साइज है, ये वाला, ये क्या किया है, हल्का सा 1 माइक्रोन, वेरी फ्यू मिली माइक्रोन, थोड़ा सॉफ्ट, और इसका साइज भी देखिए बहुत अच्छा है. इसका ये जो विजाइना, ये जो साइज है ना, दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी इजी फॉर गर्ल्स टू यूज. इसके कंपेयर में ये मीडियम साइज है. जो स्टोन सूप के सब साइज ये वाले हैं, मीडियम. ओके, सो आई हैव केप्ट दीस 3 साइजेस अकॉर्डिंग टू द, एंड ये मैंने थोड़ा सा 1 माइक्रोन, ये एल साइज है, ये 1 माइक्रोन थोड़ा थिक है, ये 1 माइक्रोन थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा सा वो है, सॉफ्ट है, और ये नॉर्मल है. तो ये हल्का सा डिफरेंस मैंने रखाया अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ माय डॉटर एंड अदर यूजर्स. तो इसलिए हम उनको नहीं दे सके, हमने वो मैरिड वुमेन को दिया. दे तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर ये दे तो सकते हैं, पर अगर ये देते हैं ना, तो उनको और थोड़ा, बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है. हाँ, नहीं, और हम जब स्लम क्लस्टर में देते हैं ना, तो वो एक थोड़ा सा बवाल भी मच सकता है, आप समझ रहे हो. वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर. तो उन्होंने कहा कि वो नहीं है, तो हमने फिर वो लेडीज को दिया, मैरिड लेडीज को दिया, जिनका बच्चा हो गया उनको दिया. लेकिन जो यहाँ पे जो बच्चे बैठे टीनेजर्स, उन जैसे बच्चों को हमने नहीं दिया. तो हमने कहा वील अगेन कम बैक एंड वील. ये मैंने, मैं क्योंकि बहुत स्कूलों में काम करती हूँ अभी, तो मुझे मैंने स्पेशली फिर ये बनवाया, और इसीलिए अब मेरे ये 3 साइज मैंने रखे. इनका हल्का सा 1 माइक्रोन का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बहुत मिली माइक्रोन्स का डिफरेंस है, बट मैंने वो रखवाया बिकॉज मुझे लगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जरूरी है. बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ये भी सोचना है, एक तो कंफर्टेबिलिटी है, प्लस ऑल्सो लैंडफिल्स में, ये एनवायरनमेंट में भी जैसे आप लोग काम करते हो, हम भी काम करते हैं. और नाइस टू मीट यू अनुजा. फाइनली आई हैव नेवर बीन एबल टू मीट यू, बट वी हैव बीन स्पीकिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द ग्रुप, राइट. तो बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मैं मिलना भी चाहती थी. तो उसका जो ये है, तो ये मैन्युफैक्चर क्या अक्रॉस इंडिया होता है, यानी कि अगर हमें बैंगलोर में चाहिए तो मिल सकता है क्या? बिल्कुल, आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी मिल सकता है. अभी मेरा ये जो कप है, इवन वेरी फ्रेंकली, अभी मेरे को नेपाल भी भेज रही हूँ मैं, और शायद अफ्रीका के लिए भी हो रहा है, क्योंकि वो जो क्वालिटी है ना, उनको बहुत अच्छी लगी एंड सुपर क्वालिटी लगी. तो क्वालिटी मेंटेन, इंडियन कप है, और पूरे इनके सारे मेरे पास में सर्टिफिकेट्स है. इवन मैंने भी यहाँ पे इवन ये कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट वगैरह सब कराया हुआ है यहाँ अम्बतूर की एक लैब से. अच्छा, तो आप कहाँ रहते हो? मैं चेन्नई में. अच्छा, चेन्नई में रहते हो. और मैं बैंगलोर बहुत आती हूँ वर्कशॉप्स के लिए. अच्छा, तो आप जब आए तो प्लीज कनेक्ट करें एनी टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी. फॉर मी कम टू बैंगलोर इज नथिंग, आई कैन कम. श्योर. एंड व्हाट इज द प्राइस आपका वैसे, ये इसका क्या, व्हाट इज द प्राइस रेंज? ये जो कप है विनीता, वैसे तो 450 का है, अगर रिटेल में हम देते हैं तो 450 इंक्लूडेड शिपिंग. लेकिन अगर मान लीजिए कोई वर्कशॉप्स वगैरह के लिए ले रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में, अगर मिनिमम 50 कप्स अगर कोई ले रहा है, सो आई गिव इट 350.
अच्छा, और अगर ये सोशल के लिए, जैसे हमको अभी जैसे और भी हमारे स्लम क्लस्टर्स है और हम देना चाहते हैं, तो उसमें आप कुछ वो कर सकते हो आप क्या? एक काम करेंगे, मुझे फोन कर लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, या अनुजा का नंबर ले लीजिए। अनुजा का आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग ग्रुप में है ना नंबर। यस यस, हाँ, तो यू कैन टॉक टू दैट, हम लोग कर लेंगे, वो कोई ठीक दिक्कत है ठीक है ठीक है ठीक है। that best possible we will do. Even ओके, we can try to arrange some sponsorship also, we will try. ओ ग्रेट ग्रेट, ओके ओके। We'll try, we can try. I have a question. Hi, my name is Anindita. I'm sorry I joined late. So, is Please. this only being done in slum clusters, or can this be done with teenage children also of society? Suppose Anandita, my workshop, this is today I did it my 170th workshop, and okay, I did great. it in every single college of the Chennai, SRM, IIT Chennai, and everywhere. I did it Okay, in great. around 100 many schools. I'm doing it in traffic police. I'm doing it in Southern Railway. So you can see all types of age clusters I am doing. Even the Okay. blind girls. And I think in month of June, I have a workshop with mental challenge person. Oh, Okay. lovely. Okay. Great. So this Great. is suitable for every kind of age group. This is suitable for every kind of strata of society and everyone who can use and who is mensurating. Okay, thank you so much. I will get in touch Anytime you with can you connect me, Anuja. anytime. And if you want, I can send the sample to you also. You can always see. I'll show it. Okay, okay. Yeah. One Thank thing, you so much. Neelam, can we also, like, of course, we are a part of this group, but instead of you coming all the way from Chennai, once we speak to you at length, can we also conduct the same kind of workshop that you are doing? Yeah, definitely. Anytime. People used to call me, a 24 hours helpline for period care. So nice. So nice. I Lovely tell you, meeting you. I Lovely want to meeting you. last. I want to share one thing, Vinita. 3 Yeah. months back, there is a girl came to my home and used my bathroom to use the cup. She said, "I'm feeling comfortable here." So I am like, क्या हो रहा है? कम से कम बाथरूम तो अपना यूज करो, कब तो हम दे देंगे भाई, बाथरूम तो अपना यूज but करो भाई, ठीक है, मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। she took me seriously 24 hours helpline. ये रिकॉर्डिंग नहीं रखना चाहिए था। सही बात है। अच्छा, anyway. But ठीक है, but it's see, all in the sometimes we have to keep the mensuration in a light way also. Why it should be a very serious talk all the Exactly. time? But I'll tell you, I'm very happy because this taboo is over. I will just share one thing. I have two sons. So one is 13 and one is 17. So when he turned like 14, so during COVID, I was a COVID warrior. तो मैंने उसी समय उसको बोल दिया था कि ये सब चीजें हैं, और उसके बाद बीइंग अ बॉय, ही इज इन कोएड स्कूल, ही डिड दीज अवेयरनेस सेशंस फॉर एवरीवन इन द क्लास. So I think things start from the parents as well, because boys also need to understand. Then Very only they will know that. तभी वो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे. Because I remember when I was in COVID, लड़के लोग मजाक उड़ाते थे, वो वेट स्टेन लग जाता था, वेट करते थे कि क्या चल रहा है, तो वो टैबू हटना चाहिए. We have to let them know, and लड़कों को ज्यादा अवेयरनेस करना है, तभी वो लड़कियों को ध्यान दे सकते हैं. Very true, Vinita. I can relate to this. Vinita, I want to share one thing. Yes. The cup box of mine is designed. This cup box of mine is designed by my son. Oh, amazing. See? Yeah. So I feel very proud when my friends say, क्या यार तुमने बोल दिया. मैंने कहा भाई तुम्हें नहीं बोलना, मत बोलो. And you will not believe, मुझे इतनी आराम हो गई है ना बोलने के बाद. It's like we talk. It's like a normal conversation. It's not periods हो गया and don't talk. No, it's like रोजमर्रा की तरह जैसे हम बात करते हैं. It's just like fever आ गया, paracetamol खा लो, the same thing. Vinita, I can relate to it so well because I have twin children. Okay. They are 14 years old now. When they Lovely. were 11, when I thought that when they're going to join class 4 and 5, obviously they were in the COVID period. So Of when course. they would go to class 6, then some of the their friends would have. So मैंने उनको class 5 में ही उनको ये induct करा दिया था दोनों को. So now it is so like you said, same thing you said, whenever I am in pain or something, though they said, I have told them also that these are the things which
can help me. Like, you know, I might get mood swings, I might get stressed, Absolutely. I Absolutely. might, so they all, you know, like, okay, you know, calming tea, they know where it is. The mama, do you need a hot water bag and all that? And also, it is very important to educate the children. And I did it at the age of 12, because I realized that that has to be done. And I also explained to them that if there is some person, like rightly you said, that there is some girl which you see in the school, and if you see, then it is your responsibility to see how you can save others not teasing that girl, you know, then same thing. Absolutely. So it just happens really from home. And frankly speaking, there are many, like you rightly said, there are many people who said that why at the age of 12. I've said at the age of 12, and now they are 14 plus, and now they are fully, you know, prepared. Like, I Of know course. that they will never be this thing. And again, I also very frankly say, yeah, I have, you know, in front of my children that, you know, I'm going through my periods right now. यार So I'm I'm telling having you ना pain. So रोजमर्रा they मतलब know. मेरे को Yeah. पीरियड्स है अभी मेरे को ना अभी एकदम मतलब प्लीज तंग मत करना एंड दे लाइक ओके मम्मा ओके एंड पीरियड्स इज लाइक यू नो व्हाट मेरे को ना पीरियड्स हो गया है अब पता है शायद ब्लीडिंग हो रहा है यू विल नॉट बिलीव मतलब मेरे घर में ना इट्स बिकम अ कॉमन कॉन्वर्सेशन एंड वन मोर थिंग इज दैट जितना अवेयरनेस हम लोग वी नीड टू रिमूव दिस टैबू बिकॉज अभी 10 साल 11 साल की लड़कियों को पीरियड्स हो रहा है नहीं, बिकॉज मैं एक ऑफ बात यहाँ द पे कहना चाहूंगी। एक्सपोजर हाँ मैं एक्सपोजर यहाँ खान पान पे एक बात कहना चाहूंगी, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड का जो एक चल रहा है ना, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए ये नहीं है कि आप पीरियड के बारे में ही बात करें। अगर मान लीजिए पीरियड के बारे में आप बात करके बच्चे लड़के अगर खुल के बात कर रहे हैं ना, इन फ्यूचर they will respect whole women as a dignified person. Exactly, that's my That point. is the It most has to start important from essence home. of this whole concept. बिल्कुल बिल्कुल जैसे मेरे बड़े बेटे को बहुत कुछ पता है ठीक है छोटे बेटे को उतना नहीं डिटेल्स में पता है पर उसको पता है कि मम्मा को चाहिए मम्मा इज नॉट फीलिंग वेल निकाल दो कप दे दो स्टेन भी लग गया है लेट मी टेल यू तो बिकॉज इट इज नॉट समथिंग जो हमने खुद लाया राइट इट्स समथिंग विच इज वेरी नेचुरल एंड टुमारो इट्स नॉट अबाउट मैरिज अभी जैसे वो फीमेल्स के साथ उठते बैठते हैं ना सो द फीमेल्स ऑल्सो फील वेरी प्रोटेक्टेड Yes, that is period friendly word. Yeah. That is. Yeah. I mean, Vinita, to that extent that I have a dog at home, it's a you know, like so she also menstruates, okay, and Yeah, their yeah. session happens for about 10 to 12 to 15 days. And my children, I mean, they are they saw this thing that, you know, when she has, so then they say that mama, like her, like you have pain, I'm sure she must be having the pain. So they are so sensitized with this that they're saying mama, they also are, you know, because we like we do, so we also, when they well, she is very clingy at the time of periods, so she, you know, sits on the bed, so we put a diaper on her once when she sleeps with me, only that time. The rest of the time, obviously there are, you know, they don't menstruate like us, so there are some spots and all. My children don't hesitate to clean it. Oh, lovely. They don't hesitate to clean it in the house. Like, they will see and they will say, and I have told them that she is our family. Okay, like you do it for your own mother if something happens. So they don't hesitate to clean it up if they see there is something there. And they would not say that, oh my God, you know, mama, see now there is a stain or something, now you clean it. So they clean the floor also. Amazing, amazing. I'm really Vinita Anandita. Again goes Like to you today don't is have my that. whole. Today is 28th May. You made this day for a whole year, both of you. My Exactly. hats off to you. because it starts from home. Now she is a mother who doesn't. अरे साफ कर लो गंदा हो गया तो क्या? But I've seen some mothers. अरे गंदा है हम थोड़ी साफ करेंगे मेड को बोलो साफ करने के लिए. You know, so those things. So we are very open. I have made them specifically that maid is external entity. If I tell the maid, if you are family, she is family. My dog is my family. Okay, so even if she pees in the house or poops in the house or not well, I said, I have cleaned your vomit. You were twins. I have cleaned your vomit. You have vomited on me. Okay, so I've cleaned it. So now you don't shit. You should not say. My friends tell me how they clean the shit and this thing. I said, why won't they do it? The similar way they have inducted this habit, and you know, respect comes from these things. I know for sure that,
like they're doing it for you. If they see some other person in pain, and if suppose my sister-in-law, and she's a doctor, so she's also very vocal about it. So she says I'm in pain, so they'll ask her, they'll not hesitate, ki mommy, do you have pain Period. for some other reason? Yeah. So, and then they will be able to help the other person. This is what makes me feel that, yeah, जो शिक्षा हम घर से देते हैं ना, that is spreading across, and it is going to another close relative, and they're asking that person. You're from? I'm from Pune. Oh, lovely. Pune. Anuja, like I think all Pune girls are a rock. And Vinita, all of you, really amazing. Today you made my day. No, I just missed out on so much of conversation. I'm surely going to listen to all of you, and I'm so grateful that we would love to hear both of you separately in our period ki Pathshala in future. Definitely. We will. Jitna awareness ho, jitna bhi hum kar sake. I mean, and I think the children are the future. They have to take the battalion, forward. And I think now the youngsters are very open. I mean, they talk about anything. It's our parents that we should be open about it and say ki, yeah, let's talk about it. See, the moment you talk, a lot of things get cleared also. Hamare time it was like shh. It was like we were treated as untouchables. But there is a story also. उस समय क्या होता था, औरतें इतना काम करती थी, जॉइंट फैमिलीज में थी, उनको रेस्ट देने के लिए ही उनको कुछ अलाउ नहीं कर. मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाहती हूँ विनीता. मेरे फादर डॉक्टर थे. जब मुझे पहला पीरियड आया और मेरी नानी, मैं नानी के पास रहती थी, मेरी नानी ने मुझसे इनलैंड लेटर लिखवाया और मेरे पापा को भेजा, क्योंकि मैं फादर के साथ नहीं रहती थी, वो बालको में रहते थे, मैं भोपाल में. मेरे फादर ने रिटर्न इनलैंड लेटर में पूरा डायग्राम बना के पूरा प्रोसेस समझाया और एंड में उस लेटर में ये लिखा था, बी हैप्पी, नाउ यू आर अ गुड वुमेन इन फ्यूचर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और वही जो आप बोल रहे हो ना, घर से शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा मिलने के कारण, मेरे फादर की इस बात के कारण, मेरी नानी की उस टाइम की सलाह के सीख के कारण मैं आज ये काम कर पा रही हूँ. क्या बात है. यही शिक्षा मेरे काम आई, तो इन फ्यूचर हमारे बच्चों को भी हमें यही देना है. नहीं, एग्जैक्टली. और क्या दे सकते हैं, एटलीस्ट यही देंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे ना. पैसे तो मेरे को लगता है पैसे प्रोफाइल सब आ जाता है, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है. जैसे अभी अनंतिका ने कहा ना, दिस आजकल के रट में ना, अभी जैसे 9th-10th में है, तो एवरीबडी इज लाइक व्हाट योर, आई से सी, कुछ ना कुछ तो तुम बन ही जाओगे, ठीक है, बट सबसे पहले इंसान अच्छा बनो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा. थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. इतना स्ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं. लाइक देयर आर पीपल एंड कमिंग एंड सेइंग, oh, what is your son going to do in future? I said, whatever he wants to do in future, he'll do it. But he has to be a good human being. And that is most important for me. Most important, absolutely. So respecting women, respecting even animals, even stray animals, plants. I mean, that I have been able to induct. I'm so grateful that, that quality time I could give to my children, so that I can now that I can reap the thing, I can see it in their eyes, the respect which they give to others. They do it for me. They do it for my friends. Anybody who carries a bag which is 5 kg or no, they will go and take the bag from that person, because they will know that maybe my mother can't carry, so maybe that auntie also can't carry. So nice of them. Very kind, very kind. Absolutely. And that has to come from home, because I have told them, like, see, I have a problem. I can't carry weight, beta. So whenever some grocery or something has to be got, then they know that they have to carry. They'll never allow us to carry. Even their father. I don't know. You and me are mostly staying in the same boat, because I also have a sciatica problem. And I will not even see if there is a lady who needs help and my children are there. I will not even feel ki mere ko sala sciatica. I'll go, and then my children. But just to add to one thing, I work very closely with people with disabilities and even with transgender and sex workers. So my request to all of you is, to all the youngsters, that they are also a part of the community. I might have, being a student, I might have my classmate who might be a gay. I might have a classmate who's a lesbian, right? So we have, because I have got cases where they have committed suicide because of the society.
So, that awareness also, like, just talk about it, and, tell your children that they're part of the society and they should be, accepted. It's nothing wrong about that. Yeah, that's Very it. soon we'll be talking about this in a different session. I have something coming up on that. Great. With Please let me know if there is something that I can talk about. I would love to, because I work very closely with them. So I would also like to, create some awareness around this, because this nobody is talking about. But Anuja, this is a very serious thing, because a bright student, my mom is still fighting case, and he was bullied for this reason. So suicide prevention and people with disabilities are two things that I work with, and we will talk about it. And today I'm really privileged to be, surrounded by passionate women, and of course, men have left the session, or maybe Amit is still here. But thank you so much for your sharings. I would like Nisi to share. Nisi, would you like to share something? Who? Yeah, am I audible? Yes, you are. Yeah. Okay. Yeah. I'm sorry, I can't put my video on for personal reasons. That's okay. Yeah. So, yes, I have my own bit of story. It's not a success story, unfortunately. It's a parts for success story. I had come to know about this many years ago, and I had shared. I mean, I tried it myself, but I wasn't successful in using it properly. So then I dropped the idea, and I have never used it after that. But I had shared this with a very good friend of mine, and then it so happens that she went ahead and tried it, and she was successful using it, and she helped her daughter also use it. So it's been a different journey for me, and I'm now almost at the end of my cycle. So I don't know whether I will be able to contribute much, but now after hearing all these inspirational stories, I think I might just give it a try for the last few times that I may be having. I think I might give it a try. So that is what I'm thinking. And definitely for my daughter, I think that's going to make a difference. Yeah, and see, you being in education, your students are also like your children. When they look up to us, Yes. they really understand and respect that. अगर हमने उनको कोई new age चीज बताई है कि my teacher or my professor or my faculty is really open-minded. So it definitely, the dynamics change. So आप definitely have the privilege to have access to so many students जो आप कर सकते हो. No, Anuja, it happens with me. मैं डॉन बॉस्को स्कूल में जब वर्कशॉप ली ना मैंने, तो वहां पे जो मेरी टीचर थी, मेरी बेटी की टीचर थी ना, उन्होंने मुझसे 5 कप मंगवाए थे और रखे, और बाद में उन्होंने और मंगवाए. What she does whenever somebody come to her, in 12th, I usually don't prefer 10th वगैरह में, तो 12th की जब लड़कियां उनके पास आती थी ना, वो उन्हें बैठ के उस कप को यूज करना सिखाती थी और देती थी. Very nice. So a teacher can do these things also. Exactly. Acha, one more thing, Anuja. Would you be also taking a session on the menopause thing? We had, we already have a session that we finished, but हमारा ऐसा है कि डिमांड है. अगर आप बोलोगे कि हमें इस चीज पे सेशन चाहिए, हम उस चीज पे करेंगे. So we've had. menopause पे एक सेशन तो चाहिए होगा. And definitely, we will invite an expert doctor. She's the ex-president of Menopause Society of India. Great. We can invite her and talk to her. Yes. Definitely. Thank you all. Thank you so much. It was quite. Thank you, Anuja. Thanks to you, and thanks to Neelam ji. Thanks to everybody. We will rock, and we should be happy. And yes, anytime we should be proud of the fact that because we only can give birth, so we should be proud of that fact as well. Thank you. Lovely. Thank you. And men are also very important. If there is any men, I'm totally in support of the men, because my boys, they will eventually turn into man. My husband is also very, very supportive. My friends, because I talk very openly. With guys also, I will tell you one more thing. पहले होता था ना, अरे नहीं लड़कों को नहीं, husbands को नहीं. अब इतना open है कि मेरे friends भी अब openly उनसे बात करते हैं. जो एक बैरियर था ना कि नहीं, पति को नहीं बोलना है. अब जब विनीता ही openly बोल देती है उनके पतियों को, तो फिर so that is ठीक है. अरे बताना इसको कि तेरे को पीरियड है, खाना नहीं बनाएगी आज.
We will keep a separate session with you and separate with Anandita. Lovely speaking. Very nice. नहीं, मैं बोलती हूँ, अरे इनको पीरियड्स हुआ है यार, उठो तुम लोग खाना बनाओ, ये कहाँ से बनाएगी, उसको सर दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे होती है. This is, I think we should have to talk about it more and more, and then things will obviously will be, nobody will take it as periods, it will be like a normal thing. Lovely talking. Thank you very much. Same here. We will meet again surely. Definitely. Thank you, Bhavna. Thank you very much, everyone. Okay. Bye-bye. Bye. Yeah. Bye, Anuja. Can we take one photo? Who can take? Bhavna, can you take? I don't know. I have a screenshot, लेकिन अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन कर देंगे वीडियो ऑन करोगे 1 सेकंड. हाँ, 1 सेकंड के लिए बस, जितने भी बचे हुए हैं. Okay, I took a screenshot. I'll share with everyone. And Bhavna ने Thank you so much. Thank you. भावना ने ग्रुप का लिंक शेयर किया है. If you okay. Books की पाठशाला का ग्रुप, you're most welcome. Okay, अच्छा, she's shared. क्या? I'll join that. I'm already there ना, Anuja, I think, no? I don't know. I'll share it with you. हाँ, will you share? Okay, I'll share that. चलो, bye Anuja. Thank you. Bye. Yes, please, admin, please approve. Anuja, please approve. I've joined the group. Yeah, I will. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, bye-bye.